ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے ہم سب نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ اس خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی نماز فجر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے چھٹا پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کا پہلا رکوع ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا برائی کے ساتھ، غلط بات کے ساتھ بلند آواز سے کلام کرنا پسند نہیں ہے۔ مسئلہ دیکھیں، برائی، غلط بات بلند آواز سے کرنا پسند نہیں، تو کیا آہستہ آواز سے کرنا پسند ہے؟ آہستہ آواز سے تو پسند ہے ہی نہیں نا، لیکن ایک غلط بات ہو، پھر بری بات ہو، بلند آواز سے کرنا یہ زیادہ ناپسندیدہ ہے، یہ زیادہ برائی ہے معاشرے کے اندر۔ یہ کب ہوتا ہے؟ نمبر ایک، کچھ جگہ ہیں یہاں پہ ہم جو ہے نا غلط بات، بری بات بلند آواز سے کرتے ہیں۔ تھوڑی سی لڑائی ہو، لڑائی کے ٹائم گالی گلوچ، بے حیائی والی باتیں، ایسی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ ہم بلند آواز سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ مقام ہوتا ہے۔ دوسرا وہ مقام ہے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے۔ تھوڑی سی بات کرنی، تیری ایسی، فلاں کی ایسی، حالانکہ وہ کوئی غصہ نہیں کر رہے ہوتے، تکیہ کلام ہے، یعنی ہر بات کے ساتھ کسی کو گالی نکالنا، ہر بات کرتے ہوئے شروع میں گالی نکالنا، یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے تکیہ کلام ہے، چاہے غصے میں کر رہا ہے، چاہے جس انداز میں کر رہا ہے، بری بات جو ہے کسی بھی طرح بلند آواز سے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح تیسرا مقام کیا، جہاں بری بات بلند آواز سے ہوتی ہے، اسٹیج ڈرامے آپ دیکھ لیں، مزاحیہ شو جسے ہم کہتے ہیں۔ مزاحیہ شو میں اتنی بےہودہ، اتنی نازیبہ، اتنی غلط گفتگو کی جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزاحیہ شو کے اندر بھی اگر غلط بات کی جا رہی ہے، بےہودہ بات کی جا رہی ہے، گالی گلوچ کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک پہ، اب تو اتنی بے حیائی آ گئی ہمارے اسلامی معاشرے میں۔ ہمارا اسلامی معاشرہ جو ہے نا، آج کا مسلمان جو ہے، جتنا یہ احساس کمتری کا شکار ہے نا، اتنا کوئی نہیں۔ جتنا یہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے نا، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ پاورفل دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ جو ہے ایڈوانس دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ ماڈرن ایسے ایسے کام کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ شرما جاتا ہے، غیر مسلم بھی شرما جاتے ہیں۔ پیسوں کی خاطر ٹک ٹاک پہ ویڈیو کے اوپر اپنی فیملی کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی، بچی ناچ رہی ہے، ساتھ باپ بھی ناچ رہا ہے، بدبختو۔ ادھر بیوی کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے، ادھر کوئی فیملی کی عورتوں کو سامنے لا کے ویڈیو بنا رہا ہے۔ کیوں؟ اصل میں چند ایک لوگوں کو دکھایا گیا یہ ٹک ٹاکر تھے، ان کے پاس دیکھو کتنا پیسہ ہے، پھر ان کی شادیاں ایسے کروائی گئیں کہ ان کی شادیوں کے اندر پیسہ شو کروایا گیا۔ یہ پبلسٹی ہے میرے دوستوں، پبلسٹی۔ یہ پبلسٹی کے لیے کچھ لوگوں کو ٹک ٹاک نے، ایپ نے منتخب کیا تاکہ لوگوں کے اندر ایک امیج بن جائے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں 5-6 منٹ کی، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہیں۔ یہ دیکھ لیں شادیوں کے اوپر ایسے اڑا رہے ہیں، ایسے تو بڑا بڑا بزنس مین بھی نہیں اڑاتا پیسے۔ ایک امیج بنا دی، اب ہر ایک کے اندر یہ ہوائی پیدا ہو چکی ہے، یار یہ پتہ نہیں کتنا پیسہ کما رہے ہیں ٹک ٹاک والے، کتنا پیسہ کما رہے ہیں یوٹیوب والے، کتنا پیسہ کما رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے والے۔ یہ صرف کیا ہے، لوگوں کو بے حیائی کی طرف۔ ہمارا پورے کا پورا اسلامی ایسے لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کرے، چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کا باپ ہی کیوں نہ، بائیکاٹ کر دے کہ ہمارا اپنے باپ کے ساتھ بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ یار اتنی بے حیائی آپ پھیلائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سارے معاملات کریں گے، ساری رسمیں کریں گے؟ نہ نہ نہ، کیا میں اپنے باپ کو نہیں دیکھتا ہوں، میں اپنے رب کا کلام دیکھتا ہوں۔ جب میں اپنے باپ کو چھوڑ سکتا ہوں بے حیائی کی بنیاد پہ، اپنے بھائی کو چھوڑ سکتا ہوں، تو میں اپنے دوست کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟
ला युहिब, छठा पारा उठाए पहली है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह ताला तुम्हारी गलत बात, बुरी बात, बेहुदा बात बुलंद आवाज से करने को पसंद नहीं करता है। तो मैं तुम्हारा रब तुम्हारी बातों को सुन भी रहा है, जान भी रहा है, एक एक बात बताएगा, हिसाब लेगा। ये मत बोलना कि हमने थोड़ी सी डील दी हुई है। आगे से लोग पता क्या करते, यार ये अल्लाह पूछ लेगा, आप अपना मामला करो, आप ये अल्लाह कर लेगा, वो अल्लाह के सामने जवाब दे, वो अल्लाह के सामने अपनी बेहयाई का जवाब दे है। हम अल्लाह के सामने इस बात का जवाब दे हैं कि हमने ऐसे बेहुदा बेहया शख्स के साथ बाईकाट किया है या नहीं किया, इसका जवाब दे हम हैं। अल्लाह ने फरमाया, वाज़ेह फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह नाम के अंदर फरमाया, ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ये जो हम नसीहत कर रहे हैं ना, इस नसीहत के बाद इन नाफरमान और बेहया लोगों के साथ बैठना नहीं है। अगर बैठोगे तो हम तुम्हारी नमाजें नहीं देखेंगे, तुम्हारी नेकियां नहीं देखेंगे, तुम्हारे नेक अमाल नहीं देखेंगे, तुम्हारा हश्र भी इन बेहया लोगों के साथ करेंगे। ये भी आपके यहां शादी हुई, कितना 5-5 हजार के नोट, पता नहीं लाखों के लोगों के सामने एन वीडियो बना के टीवी चैनलों के ऊपर दिखाया गया, वो नोट फैला रहे, नोट उड़ा रहे हैं। लाखों की सलामियां लोगों के सामने दी गई, सर के ऊपर वार के, पंजाबी में कहते हैं ना सर के ऊपर, सर का सदका। ये सर का सदका नहीं है, ये सर को दोज़ख के अंदर डालने वाली बात है। जब टीवी चैनलों के ऊपर दिखाई गई, इतना पैसा कहां से पैसा आ गया, 5-5 हजार के नोट, हम तो 10-10 के देते हुए भी रोते हैं। वो जो 10-10 के देते हुए रोते हैं ना दुनिया में, वो आखिरत में खुशी का सबब बनेंगे। वो जो 5-5 हजार के नोट देते हुए खुश हो रहे ना दुनिया में, वो आखिरत में रोने का सबब बनेंगे। वो शादी दिखाई गई, उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टिकटॉक के ऊपर अपनी फैमिली के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अंदाजा कर, आप हमसे ज्यादा समझदार। आपने देखा नहीं, कमर्शियल पब्लिसिटी जब करते हैं, कमर्शियल आती है ड्रामों के ऊपर, टीवी के ऊपर, चैनल, वो क्या कमर्शियल होती है, पब्लिसिटी करवाते हैं ना। कुछ लोगों को आप मुंतखब करते हैं कि आप हमारी जगह ऐड करें, आप ऐड करेंगे हमारी चीज की पब्लिसिटी होगी। ओ भाई, ये जो ऐपें हैं ये भी ऐड दे रही हैं लोगों को, फिर इनको पैसा देती हैं, इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर, देखो जी मैंने एक दिन के अंदर इतना पैसा कमा लिया, जाए बाहर में तेरा पैसा। इस बेहयाई के पैसे से तो बेहतर है इंसान फाकों के साथ भूखा मर जाए इंसान। हाँ, अल्लाह ने ये फरमाया, गलत बात, बुरी बात उस शख्स को बुलंद आवाज से करने की इजाजत है जिसके साथ जुल्म हुआ हो। मतलब जिसके साथ जुल्म हुआ है ना, जुल्म जिस हालत में हुआ है, वो गलत बात है या नहीं है, वो गलत बात है। जो जुल्म जिसने किया है वो गलत बात है। हाँ, अल्लाह ने ये फरमाया, वो जो मजलूम है ना, वो गलत बात बुलंद आवाज से कर सकता है कि ये गलत काम, ये जुल्म वाला काम फुला बंदे ने मेरे साथ किया है। इसको क्या कहते हैं, एहतिजाज, मुजाहरा। फरमाया अगर एहतिजाज, प्रोटेस्ट, मुजाहरा जो है अगर नेक नियति पर है, हक पर है, सच पर है, फिर तो जायज है। अगर पैसों की बुनियाद पे है, किसी को ब्लैक मेल करने के लिए है, किसी के कहने के ऊपर है, फरमाया फिर वो मुजाहरा भी ऐसे ही है जैसे बेहुदा बात जो कर रहे हो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, ज़हन में सवाल आता है ना कि अगर ये बात बुलंद आवाज से करना पसंद नहीं है, फिर अच्छी बात भी नहीं होगी शायद। अल्लाह ने फौरन फरमाया, इन तुबदू खैरन औ तुख्फूहु, अगर चाहो नेकी वाली बात, चाहो तो लोगों के सामने बुलंद आवाज में करो, चाहे ऐसा आवाज में करो, वो अल्लाह को बड़ी पसंद है, वो अल्लाह को बड़ी पसंद है। जो तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, अगर तुम उसको मुआफ करना चाहो तो ये तुम्हारे इख्तियार में है। फइन्नल्लाह कान अफुवन कबीरा, अल्लाह ताला भी बख्शने वाला है और वो इंतकाम लेने पे कादिर भी है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, ये तो थ्योरी थी ना, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, एक थ्योरी होती है, कुरान पाक उसके साथ प्रैक्टिकल भी बयान करता है। सबसे बुरी बात क्या है, अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान न लाना, सबसे बुरी बात। अल्लाह ने प्रैक्टिकल बयान किया। फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुफर किया, वो अल्लाह उसके रसूलों के दरमियान फर्क करते हैं। अल्लाह उसके रसूलों के दरमियान फर्क का मतलब क्या है कि हम बाज रसूलों को माने, बाज को छोड़ दें, लायासुबिल्लाह, जैसे यहूदी करते हैं।
जैसे ईसाई करते हैं। हम जितने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए, जितने रसूल इज़ाम आए, हम सब के ऊपर ईमान रखते हैं, किसी के दरमियान फर्क हम नहीं करते हैं। कुरान पाक ने फरमाया इसी रुकू में, फरमाया जो तमाम रसूलों के ऊपर ईमान रखते हैं ना, वो देखेंगे आन करीब हम उन्हें ऐसा अजर अता फरमाएंगे जिस अजर वाला कोई और अजर नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह उसके रसूल के दरमियान फर्क करने से क्या मुराद है? बड़ा अहम मसला, बड़ा अहम मसला। आप ये कहो हम अल्लाह की बात तो मानते हैं, रसूलुल्लाह की बात नहीं मानेंगे, ये मुसलमानों के अंदर मौजूद है और मुसलमान कहलाते हैं, जिसको हम हदीस के मुनकर कहते हैं, मुनकिरीन हदीस। वो पता क्या कहते, कई लोग उनको कुरानीयीन भी कहते हैं, कुरान वाले। पता क्या करते हैं, भी आप कुरान से दिखाओ, हमें हदीस की बात ना करो। ये मसला अगर कुरान में बयान है, अच्छा आप जो नमाज पढ़ते हो कुरान में ये तरीका बयान हुआ है, जब कुरान में ये तरीका बयान ही नहीं हुआ तो नमाज भी फर्ज नहीं। ये देखिए अल्लाह ने फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह उसके रसूल के दरमियान फर्क करते हैं, ये कहते हैं अल्लाह का हुक्म मानेंगे, रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे। और कुरान क्या फरमा रहा है, मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, जो अल्लाह ने हराम करार दिया है, जो उसके रसूल ने हराम करार दिया, दोनों को मानो, दोनों को मानो। कुरान भी मानना है और साथ जो रसूलुल्लाह की बात हदीस मुबारका की रोशनी में तुम्हारे तक पहुंची है उसको भी मानना है, फिर तुम्हारा ईमान कामिल होगा, फिर ये पता चलेगा कि तुम अल्लाह उसके रसूल के दरमियान फर्क नहीं करते। हत्ता के हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसा जमाना देख रहा हूं, कुछ लोग आएंगे तकिए के साथ ऐसे टेक लगा के बैठे होंगे, यानी कुर्सियों पे बैठे होंगे, और वो कहेंगे कि हम कुरान की बात मानेंगे, रसूलुल्लाह की बात को नहीं मानेंगे। फरमाया वो उस टाइम के बदतरीन लोग होंगे, बदतरीन लोग, उनसे बच के रहना। लिहाजा कभी भी तकिए कलाम के तौर पे किसी भी तरह बेहुदा बेहया वाली बात ऐसा आवाज से तो करनी ही नहीं, बुलंद आवाज से करना ज्यादा नापसंदीदी का सबब है, ज्यादा अल्लाह की नाराज। हत्ता कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बुराई वाली बात, बेहुदा बात बुलंद आवाज से करोगे ना, तो जान लो जिन जिन लोगों ने सुना होगा ना, वो तुम्हारे खिलाफ क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे, क्यों अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, तुम जमीन पर अल्लाह जो जो तुम गवाही दोगे अल्लाह उसी के मुताबिक फैसला करेगा। हमारा मुआशरा है, कभी पैसों की जारी हालत में न जाएं। जब भी पैसा देखें, अगर उसके बारे में पता है कि उसका पैसा जायज जरिए से है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी इस्तिकामत के लिए दुआ करें। अगर नहीं पता है तो ये दुआ किया करें कि या अल्लाह तूने जितना हमें दिया है ना वो इसके हलाल पर, जितना तूने हमें दिया है ना उसके ऊपर राजी हो जाए। अगर इसके पास हराम का पैसा है तो इसको हिदायत दे, ये दुआ करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने आप को भी नफ्सियाती मरीज बना लें, हम अपने आप को भी उसके बारे में सोचने पड़ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है रब्बे कायनात हमें हिदायत के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या